Hello, dear students. Today we are going to start chapter number 10, Dividend Decision and Valuation of Firm. I will share these notes with you all, but let's start the discussion of this topic. First of all, let's understand what is the meaning of this term dividend. As we all know that when we buy shares, either they are equity shares or preference shares, we are paid dividend by the company. Dividend is a kind of return that we get on the shares. But here we are discussing it from the viewpoint of the company. So, whatever the company pays, the part of the profit to the shareholders, the after tax profit which is distributed to the shareholders, okay, that is called the dividend. So, the term dividend refers to that portion of the profit after tax which is distributed to the shareholders of the firm, and the other part of the profit which is not distributed is known as the retained earnings. So basically the after tax profit is divided into two parts. The major part which is divided amongst the shareholders is called the dividends, and the part of the profit which is retained by the company is known as retained earnings. Now in this chapter dividend decision, what we are going to study, we are going to study basically certain theories, certain models which are given by different experts. That is all these theories will focus on whether the dividend decision is important for the firm, important for the company or not, whether it impacts the value of the firm or not. Okay, so in this chapter we are going to study the theories related to dividend. So, in dividend decision, the finance manager is basically concerned about whether any dividend should be paid or not to the equity shareholders, how much dividend to be paid, when these dividends are to be paid, interim or final dividends, and how much profits to be um, plowed back in the business, etc. So every businessman, every company has to decide on these important decisions related to dividend, that whether it has to pay dividend or not, when the dividend is to be paid, in what form the dividend has to be paid, how much dividend is to be paid, how much retained earnings are to be maintained by the company. So all these decisions come under the category of dividend decision. So now the question is whether the dividend policy has any impact on the value of the firm or not. This is all we are going to discuss in this chapter. So basically, whenever the firm pays the dividend, it has certain impacts. Like जब भी कंपनी डिविडेंड पे करेगी तो क्या होगा, कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन पे इम्पैक्ट होगा, कंपनी को कैश पे करना पड़ेगा बिकॉज डिविडेंड विल बी पेड मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ द डिविडेंड. बट डिविडेंड पे करने का बेनिफिट ये होगा कि कंपनी की गुडविल इंक्रीज होगी. ठीक है, और गुडविल इंक्रीज होगी, कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी. So shareholders will be willing to maintain their funds in the shares of the company. They will not quit the company, and they will be willing to provide additional funds to the firm whenever the company will demand. So whenever the company will be in the need of the funds and the company wants to raise more funds from the shares, the shareholders will be very much willing to invest further, invest more amount in the company. So डिविडेंड पे करने का कंपनी को डेफिनेटली फायदा होता है. लेकिन अगर कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती और उस प्रॉफिट को रिटेन कर लेती है, जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं या जिसको हम फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स बोलते हैं, तो उसका भी कंपनी को बेनिफिट होता है. कैसे बेनिफिट होता है कि कंपनी के पास सेल्फ मेंटेन्ड फंड्स का पूल हो जाता है. अपने खुद के मेंटेन किए हुए पैसे आपके पास होते हैं जिनको आप अपनी इमरजेंसी नीड्स के लिए यूज कर सकते हो. So whenever you are in the needs of the funds, you will not have to go outside, you will not have to raise further funds. ओके, सो ये कंपनी का बेनिफिट होगा. लेकिन ऑफ कोर्स डिविडेंड ना पे करने की वजह से कुछ नुकसान भी हो सकता है, बिकॉज शेयर होल्डर्स मे गेट अनॉयड. दे मे फील कि भाई हमें डिविडेंड क्यों नहीं दिया जा रहा. दे सम ऑफ देम will be depending upon the dividend income for their various needs, so they may quit the company, they will look for other companies which are paying regular dividends to them. So dividend पे करने से और ना करने से प्लस पॉइंट्स भी हैं और माइनस पॉइंट्स भी हैं. Okay, so there are various models which have been proposed to evaluate the dividend policy decision in relation to the value of the firm. बहुत सारे models हैं जो different experts ने दिए हैं, जो हमें ये बताते हैं कि क्या डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन का फर्म की वैल्यू पर कोई इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता. सो बेसिकली जो भी हमारी डिविडेंड थ्योरीज या मॉडल्स हैं, वो दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप बताती हैं. फर्स्ट इज डिविडेंड डिसीजन एंड सेकंड इज द वैल्यू ऑफ द फर्म, कि डिविडेंड डिसीजन का फर्म की वैल्यू पर कोई इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता. सो नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कशन ऑन द डिविडेंड थ्योरीज और मॉडल्स. द थ्योरीज और मॉडल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. दो तरह की थ्योरीज हैं हमारे पास. एक है रेलिवेंस थ्योरी
और दूसरी है इररिलेवेंस थ्योरी। रेलिवेंस थ्योरी ये कहती है कि डिविडेंड पॉलिसी का फर्म की वैल्यू पर इम्पैक्ट पड़ता है। दैट इज डिविडेंड डिसीजन इज रेलिवेंट एज फार एज द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज कंसर्न्ड, एज फार एज द वैल्यू ऑफ द फर्म इज कंसर्न्ड। ओके। और इररेलेवेंस थ्योरी हमें ये कहती है कि डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड डिसीजन इज इररेलेवेंट एज फार एज द वैल्यू ऑफ द फर्म इज कंसर्न, यानी कि डिविडेंड का फर्म की वैल्यू पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। सो दीज नेम्स सजेस्ट दियर मीनिंग। सो रेलिवेंस मीन्स डिविडेंड डिसीजन रेलिवेंट है, और इररेलेवेंस मीन्स डिविडेंड डिसीजन इररेलेवेंट है। ओके। सो ये दोनों थ्योरीज जो हैं एक बेसिक अजम्पशन पर बेस्ड हैं, जो हमने इसी में ही मेंशन की हुई हैं। सो रेलिवेंस थ्योरी की जो बेसिक अजम्पशन है वो ये है दैट इन्वेस्टर्स हैव प्रेफरेंस फॉर करंट डिविडेंड्स ओवर द फ्यूचर कैपिटल गेन्स। कि जो इन्वेस्टर्स हैं यानी कि जो शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, उनको क्या चाहिए, उनको करंट डिविडेंड्स चाहिए, ना कि फ्यूचर कैपिटल गेन्स चाहिए। यानी कि इन्वेस्टर्स जो है वो ये चाहते हैं कि उनको डिविडेंड अभी दे दिए जाएं। ठीक है। अब देखो कंपनी जो है अगर शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट डिविडेंड दे देती है तो इसका बेनिफिट क्या होता है, शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट डिविडेंड मिल जाता है। लेकिन अगर कंपनी प्रेजेंट में डिविडेंड नहीं देती और उस अमाउंट को रिटेन कर लेती है, उस अमाउंट को रिटेन करने का भी शेयर होल्डर्स को बेनिफिट ये होता है कि वो रिटेन्ड अर्निंग्स बाद में उन्हीं शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, जिसको हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग्स। हम इस चीज को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी पढ़ चुके हैं कि जब भी कंपनी के पास बहुत सारे रिटेन्ड फंड्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको कैपिटलाइज करके बोनस शेयर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सो अल्टीमेटली वो रिटेन्ड अर्निंग्स भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ही जाती हैं, और इक्विटी शेयर होल्डर्स के नंबर ऑफ शेयर्स को इंक्रीज कर देती हैं। और जब वो शेयर होल्डर्स अपने इंक्रीज्ड शेयर्स को मार्केट में सेल करेंगे तो ऑफ कोर्स उनको कैपिटल गेन होगा। तो दो चीजें, अगर कंपनी प्रेजेंट में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उनको प्रेजेंट डिविडेंड मिल जाएंगे। अगर कंपनी प्रेजेंट में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, रिटेन कर लेती है अर्निंग्स, तो उनको फ्यूचर में कैपिटल गेन होगा। ओके, दो चीजें हैं। लेकिन रेलिवेंस थ्योरी की अजम्पशन ये है कि इन्वेस्टर्स को करंट डिविडेंड पसंद है, इन्वेस्टर्स हैव प्रेफरेंस फॉर करंट डिविडेंड्स ओवर द फ्यूचर कैपिटल गेन्स। ओके। और इररेलेवेंस थ्योरी की अजम्पशन ये है कि शेयर होल्डर्स डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन करंट डिविडेंड्स और फ्यूचर कैपिटल गेन्स। शेयर होल्डर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी उनको करंट में डिविडेंड दे रही है या नहीं दे रही, क्योंकि अगर नहीं भी दे रही तो उनको फ्यूचर में कैपिटल गेन हो जाएगा। ऑलराइट। सो ये हमारी दोनों थ्योरीज का क्रक्स है। अब रेलिवेंस थ्योरी में दो इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं, वॉल्टर्स मॉडल और गॉर्डन्स मॉडल। और इररेलेवेंस थ्योरी में भी दो इंपॉर्टेंट हमारे थ्योरीज आती हैं, रेसिजुअल थ्योरी ऑफ डिविडेंड्स एंड सेकंड इज एमएम अप्रोच, दैट इज मॉडिग्लानी एंड मिलर अप्रोच। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद वॉल्टर्स मॉडल. So Walter model was given by Walter J.E. This is the name of the expert who gave this theory. And because ये theory जो है relevance थ्योरी की कैटेगरी से बिलोंग करती है, तो ऑफ कोर्स इसमें हम टैग लाइन, जो क्रक्स लाइन है, वो क्या लिखेंगे कि डिविडेंड पॉलिसी इज रेलिवेंट, दैट इज डिविडेंड पॉलिसी हैज एन इम्पैक्ट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर और द वैल्यू ऑफ द फर्म। फर्म की वैल्यू पर तो तभी इम्पैक्ट पड़ेगा ना जब शेयर की मार्केट प्राइस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो डिविडेंड से शेयर की मार्केट प्राइस पर इम्पैक्ट पड़ता है, और शेयर की मार्केट प्राइस पर इम्पैक्ट पड़ने से ही फर्म की वैल्यू इम्पैक्ट होती है। दिस इज द टैग लाइन, द क्रक्स लाइन ऑफ दिस थ्योरी। सो ऑफ कोर्स एज वी आर डूइंग अदर थ्योरीज ऑल्सो, थ्योरी की स्टार्टिंग में हम सबसे पहले एक स्टार्टिंग की लाइन, इंट्रोडक्टरी लाइन लिखते हैं, फिर हम अजम्पशंस देते हैं, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं, फिर हम कुछ फॉर्मूला बताते हैं। तो इसका भी यही पूरा स्ट्रक्चर रहेगा। So this theory is based upon the following assumptions. So two main assumptions हमारे पास यहाँ पे हैं. First is all investment proposals of the firm are to be financed through retained earnings only and no external financing is available to the firm. यानी कि कोई एक्सटर्नल फाइनेंस नहीं है। बेसिकली हम हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं, जो भी फाइनेंशियल नीड्स हैं, हम उनको रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू ही फाइनेंस करते हैं। यानी कि कंपनी में कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स, कोई भी डेट जैसी कोई भी चीज नहीं है। देयर आर ओनली टू सोर्सेज, दैट इज इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। जैसे कि हमने कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में पढ़ा था कि देयर आर ओनली टू सोर्सेज, दैट इज इक्विटी एंड डेट। यहाँ पर हम पढ़ते हैं देयर आर ओनली टू सोर्सेज, इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। फर्स्ट assumption. Second assumption, rate of return on investment, that is R, and cost of capital of the firm, that is KE, are constant. तो दो चीजों को हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स को लिया है और दोनों को ही कांस्टेंट माना है। फर्स्ट वेरिएबल इज रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड वेरिएबल इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म, दैट इज KE। दोनों को ही कांस्टेंट माना है।
अब ये आर और के ई क्या है, ये हमने इस पैराग्राफ में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. So if the firm pays dividend to the shareholders, they will in turn invest this income to get further returns. This expected return to the shareholders is the opportunity cost of the firm and hence the cost of capital, that is KE to the firm. So what is KE? KE means अगर कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो शेयर होल्डर्स के हैंड्स में इनकम चली जाती है और शेयर होल्डर्स इस इनकम को कहीं पर भी इन्वेस्ट करके और रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं. दे कैन अर्न रिटर्न्स ऑन दैट इनकम दैट दे गेट विद थ्रू द हेल्प ऑफ द डिविडेंड. ओके, सो दिस एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न शेयर होल्डर्स अर्न कर सकते हैं, वो कंपनी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. बिकॉज ये इनकम शेयर होल्डर्स को तभी जनरेट हो पा रही है बिकॉज द कंपनी इज नॉट रिटेनिंग this dividend income, this profit with itself. And instead of retaining the profits with itself, the company is distributing this income in the form of dividend to the shareholders, and that's why they are able to earn this return. So इसको हम बोलते हैं opportunity cost of the firm, and hence this is cost of capital to the firm. और यही firm की cost of capital है, KE, denoted as KE. Okay, and on the other hand, if the firm retains the earnings, then the firm can earn return by investing these retained earnings. So this rate of return is called R. अगर फर्म डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे और अर्निंग्स को रिटेन कर ले तो फर्म के पास फंड्स इकट्ठे हो जाएंगे और उन फंड्स को अगर कंपनी इन्वेस्ट करके कुछ रिटर्न जनरेट करे तो उसको बोला जाता है आर. दिस रेट ऑफ रिटर्न इज आर. सो बेसिकली दोनों चीजें एक एक एक्सट्रीमली ऑपोजिट डायरेक्शन को पॉइंट आउट कर रही हैं कि अगर हम प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स को दे दें और शेयर होल्डर्स उस डिविडेंड इनकम से कुछ रिटर्न जनरेट कर पाते हैं तो जितना रिटर्न वो जनरेट कर पाते हैं वो के ई है. यानी कि शेयर होल्डर्स जो डिविडेंड इनकम पर रिटर्न जनरेट कर पाते हैं वो के ई है. और अगर कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना करे और रिटेन्ड अर्निंग्स इकट्ठी करे तो उन रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर सकती है उसको आर बोला जाएगा. ओके, सो एक ही प्रॉफिट के दो यूटिलाइजेशंस हो सकते हैं. अगर कंपनी रिटेन करती है तो कंपनी जो रिटर्न कमाती है वो आर है. अगर कंपनी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड तो शेयर होल्डर्स उस डिविडेंड इनकम पर जो रिटर्न जनरेट कर पाते हैं वो के ई है. ओके, और इस थ्योरी में आर और के ई दोनों को ही कांस्टेंट माना गया. अब इस थ्योरी में आर और के ई के तीन कॉम्बिनेशन हमें एक्सप्लेन किए गए हैं. So according to Walter, dividend policy of the firm depends upon the relationship between R and KE. आर और के के रिलेशनशिप के बेसिस पर कंपनी को ये डिसाइड करना होगा कि कंपनी को कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए. सो फर्स्ट सिचुएशन, इफ आर इज ग्रेटर देन के, मान लो आर ग्रेटर है. अब हमने आर क्या पढ़ा था, आर है वो रिटर्न जो कंपनी अपनी रिटेन्ड अर्निंग पर अर्न कर सकती है. तो अगर ये आर ग्रेटर है के ई से, यानी कि शेयर होल्डर्स जो रिटर्न जनरेट कर सकते हैं उसके कंपैरिजन में कंपनी जो रिटेन अर्निंग से रिटर्न जनरेट कर सकती है वो ज्यादा है, तो क्या करना चाहिए, कंपनी को रिटेन करके रखना चाहिए प्रॉफिट्स बिकॉज आर इज ग्रेटर देन के ई. Okay, so this is what is written. It means that the firm can earn more by retaining the profits than the shareholders can earn by investing their dividend income. So the firm should retain the earnings and thereby the firm can increase the wealth of the shareholders. और इसी से ही shareholders की wealth increase होगी. And this is what is the ultimate goal of the financial management. Okay, so thus when R is greater than KE, the firm should have zero payout. दैट मीन्स 100% रिटेंशन रेशियो. कुछ भी पे नहीं करना चाहिए डिविडेंड, 100% रिटेन करना चाहिए प्रॉफिट बिकॉज आर इज ग्रेटर देन के. ओके, एंड इट शुड री इन्वेस्ट द एंटायर प्रॉफिट्स टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स. री इन्वेस्ट मतलब अपना रिटेन करके रखना चाहिए और उसको कहीं इन्वेस्ट करके आर रिटर्न कमाना चाहिए. Okay, this way they will be able to grow the wealth of the shareholders. This type of a firm is called the growth firm. Okay, so first situation. Second situation, if R is less than KE, so it means the firm can earn less return. Okay, R less hai, firm can earn less return in comparison to the return which the shareholders can earn if the dividend is distributed to them. So what should be done? The company should distribute the dividend to the shareholders. Okay, so in this situation the payout ratio should be 100%, retention ratio should be 0%. This type of a firm is called declining firm. Okay, because the firm cannot itself grow its wealth. So it's better that the firm should distribute the dividend
to the shareholders, and this way the shareholders will be happy and value of the firm will increase. Third situation, if R is equal to KE, that means both situations, in both the situations, the return is equal. So it means you can do whatever you want. That means the dividend is irrelevant. Every payout ratio is optimum. आप जितना भी distribute करो या नहीं करो, it depends upon the company, because shareholders की wealth पर कोई भी impact इससे नहीं आएगा. So dividend policy will not impact the market value of the share in this situation when R is equal to KE. But when these two are unequal, of course, dividend policy will put an impact on the value of the firm, as we have discussed in the above 2 points. Okay, so this was the explanation of the theory. So the crux of this theory is, in this theory two variables have been explained, R and KE. The meaning of the two variables is given, and then the three combinations of the three variable explains three different situations how the company should act, whether the company should distribute dividend or not. Okay, so ये तीन situations हैं जो आपको इसमें explain करनी है. After that, last of all, the basic formula is given. Walter has given the following mathematical valuation model. Okay, this formula you have to learn, because practical questions of this model will be based upon this formula. So here P, what we are calculating, PP is the market price of the equity share. That's why we have named it a valuation formula, valuation model, which किसकी वैल्यूएशन करें, हम वैल्यूएशन करें शेयर की वैल्यूएशन, मतलब उसका मार्केट प्राइस एस्टिमेट कर रहे हैं इस इक्वेशन से. सो पी यानी कि मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू डिविडेंड ओवर के ई प्लस आर अपॉन के ई माइनस डी divided by KE. So here D dividend per share है, E earning per share है. This I have explained various times in the class. Earning per share और dividend per share में क्या difference होता है? So this is the broad term and this is the narrow term. So we have to use these D and E in the formula. And R and KE are the same things, whatever we have explained above in the model. R means the rate of return on the investment of the firm which the company can earn, and KE is the cost of equity share capital. That is, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल का मीनिंग यही हमने डिस्कस किया है ना, कि द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स. सो दिस इज व्हाट इज डिनोटेड बाय केई. ओके, सो इन चारों वेरिएबल्स को यूज करके ये फॉर्मूला वॉल्टर ने दिया है, through which we calculate the market price of the equity share. So this is about the theory. And last of all, critical appraisal. Critical appraisal, as usual in any theory, whenever we do critical appraisal, we just criticize the assumptions which we take in the beginning. So first assumption, that financing of the investment proposal is only by retained earnings, no external financing is used. It is totally unrealistic. ठीक है. And second, the assumption that we have taken R and KE constant, this is also unrealistic, because these two variables cannot be constant in practical life. So this was about this theory. So you need to learn it, and in the next video I will be explaining you the Gordon's model. Thank you.